Welcome to this lecture on Carnot diagram or K-map by Dr. Rajesh Singh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So today we will learn another method of finding a minimal polynomial. So that is called diagram. So this is more a graphical way of representing a Boolean polynomial. So dn form of dn form. So इसमें क्या करते हैं? We will find dn form of a polynomial and then we will represent it using this Karnaugh diagram. Okay. So this is more graphical way to represent a Boolean polynomial. So is this whiteboard visible to everyone? Yes, sir. So this Karnaugh diagram और इसे K map भी कहते हैं और K map is a graphical way of representing a Boolean polynomial. ठीक है? So it is a graphical way of representing a Boolean polynomial. So इसमें क्या करते हैं? What do we do is this is also used to find minimal form of a Boolean polynomial. Okay, so this is also used to find minimal form of a Boolean polynomial. So let us. So what steps to represent? So steps to represent. Okay, first let me just give you structure of this. So अगर हमारे पास input 2 variable का है, input 1 variable, so there are different inputs, ठीक है? So उसके according we have different diagrams. Okay. Okay, just so this diagram is for 2 input variable. Okay. इसमें एक काम करना है हमें to share. Let me just get you better. So this diagram is for 2 input variable. Okay. Input
वेरिएबल। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स के इनपुट हैं, मतलब दो वो हैं वेरिएबल्स हैं, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, दिस डायग्राम। अगर 3 इनपुट वेरिएबल है तो वी हैव दिस फिगर। So this is for 3 input variable. Three input variable. Okay, this is for 3 input variable. Then there is another figure for variables. So अगर हमारे पास 4 वो variables हैं तो then this is your, ये diagrams याद रखने हैं तुम्हें, ठीक है? You have to remember this diagrams. So this is the diagram for 4 input variables. Four input variables. ठीक है, अभी इसका यूज अभी सीखेंगे हम। This is for 4 input variables. ठीक है, and this is also called standard square SQ. It is also represented by, this is called standard square or SQ. क्योंकि आगे के जितने भी बड़े वाले स्क्वायर्स होते हैं वो इससे बनते हैं। अगर 5 वेरिएबल का हमारे पास है तो वी कैन मेक यूजिंग दिस स्टैंडर्ड स्क्वायर। ठीक है, लेट मी शो यू। सो जैसे अगर हमारे पास 5 या 6 वेरिएबल्स होगा तो वी कैन मेक यूजिंग दिस एसक्यूज, उनको इससे यूज कर सकते हैं। So we can put these SQs here. So this is 5 variable and this is for 6 variables. ठीक है, so बस क्या होगा, यहाँ पे पूरा ब्लॉक ये वाला डाल देंगे हम। We will put the complete block here and complete block here. So then that will be a 5 variables and similarly we will put all the ये 4 blocks इस तरह से डाल देंगे तो we will get this 6 variable diagram। ठीक है, so 5 का मैं दे देता हूँ तुम्हें, 5 का बना के 5 का ऐसा दिखेगा। So the 5 variable form will look like this. So उसको कैसे बनाओगे 5 वेरिएबल को? Let us just draw it. ठीक है, just draw it. So take this, now take this. ठीक है, so this is your B5 dash, right? अब एक SQ यहाँ पे डालना है, एक SQ यहाँ पे डालना है, right? जैसे ये हमारा SQ है, this is our SQ. So ये वाला बॉक्स पूरा यहाँ पे डाल देंगे हम, एक बॉक्स, और एक बॉक्स उधर डाल देंगे। ठीक है, is it fine? So let me just show you कैसे डालेंगे हम। So this block we will put here. ठीक है, so ये पूरा ब्लॉक डाल दिया हमने। ओके, ठीक है, so this is a B1, this is a B1 dash, this is a ये। अब सेम इधर भी हम सेम ये फिगर, ये पूरा ये ब्लॉक इधर डाल देंगे like this। So this is your another block. Let us just draw this line again. ठीक है, is it fine? So this is how you can have this, so 5 variable, input. Okay, so this is how you can have, similarly you can draw for 6 variables and 7 variables. वैसे we are not going to use this 5 variable diagram, बहुत ही rarely कोई पूछ सकता है तुमसे, but still you should know कि 5 variable या 6 variable का कैसे बनाना है। ठीक है, is it fine? Is it clear ये सारे diagrams? So basically देखो, अगर तुम्हें if you are given x1 x2, ठीक है, if you are given x1 x2
polynomial. So basically it will be this b1 b2 वाला is, so there are two ways to represent this. So either some कुछ बुक्स में हम इसे 1 से पुट कर देते हैं और and all other entries 0, और क्या कर सकते हैं हम, in some books we shade this region, ठीक है. So या तो shade कर सकते हैं या we can put, so ये क्योंकि ये x1 x2 जो है हमारे ये b1 b2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और दो इनपुट वेरिएबल है, so we will use this figure and then we will shade this region, ठीक है. So now let us first write the steps to represent a given polynomial in by Karnaugh K-map या Karnaugh diagram. Steps to represent a polynomial through Karnaugh diagram. So step 1 is find the write the function table and find the dn form. Dn form find करने का मतलब है कि you will have to write the function table, right? Find the dn form of the boolean polynomial, ठीक है. So पहले dn form निकालना होगा उसका using function table. And step 2, what should be step 2? Corresponding to min terms appearing in dn form. So corresponding to min terms या summand or summand appearing in dn form appearing in dn form of the Boolean polynomial shade the box in the Karnaugh diagram. Shade the box in the Karnaugh diagram or put 1 in the Karnaugh diagram, ठीक है. And 0 for all for missing minterms. For missing, so there are two ways, either shade the box or you can put 1 and 0 corresponding to जो भी terms appear हो रहे हैं उसको 1 कर दो और जो भी terms missing है उसको 0 कर दो, ठीक है. So there are two ways to represent it. Fine. Is it fine? So let us do some examples, then you will understand it better. So first example that we will do is, so simplest ले लेते हैं पहले, question 1. Represent the polynomial p equal to x1 x2 through Karnaugh diagram, ठीक है. तो क्या कैसे करेंगे? So कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? 2. We have 2 variables, so we will take this 2 variable diagram, right? So we'll use this 2 variable diagram. अच्छा यार इसको let us just draw it ourselves so that हम variables को भी वो कर सकें, ठीक है. So this is our 2 variable diagram, right? So this is your x1, sorry x2 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 dash x1
x1 dash, right? Yes, या उल्टा भी कर सकते हो, जो भी है मतलब. So what should be the diagram? So एक तो ये हो गया. There is two ways to represent it. Okay, so there are two ways to represent it. So एक तो ये हो गया x1 x2 है. So p is equal to x1 x2. So what you will do, you will shade this x1 x2. So either shade, or what you can do is you can put 1 and 0 at all other missing places. Two ways of representing through Karnoff diagram. ठीक है, fine. Yes, sir. Yes, clear है सबको? So one is you can shade the box corresponding to this x1 x2 corresponding to this minterm, or you can put 1 in the box corresponding to this one, and at all other boxes you can put 0. ठीक है, बट तुम्हारे सिलेबस में, वो तुम्हारे बुक में they have used this shading notation, so हम ये वाला यूज करेंगे, बट ये भी यूज कर सकते हो तुम. ठीक है, is it fine? Yes, sir. Now let us take another example जिसमें मैं फंक्शन टेबल भी बनाना हो. Let me take some another example. Yes, so represent the polynomial p equal to x1 dash plus x2 dash using Karnoff diagram. So now this is not in DN form, right? Although it is simple form, but it is not in DN form. So first we will have to get a DN form for this. इसकी टेबल बनानी पड़ेगी हमें, right? So function टेबल बनानी पड़ेगी हमें इसकी. Function table for p equal to x1 dash plus x2 dash. So b1 b2 pb bar b1 b2. So 0 0 0 1 1 0 1 1. So क्या आएगा यहाँ पे? 0 0 पे what will be this? 1 plus 1. जहाँ पे भी एक 0 आ गया that means वहाँ पे 1 है हमारे पास. ठीक है, so all three are 1 क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है ना, प्लस हो रहा है, and this is 0. So Karnoff diagram इसका बनाते हैं. Let us draw its Karnoff diagram. ठीक है, so this is your x1 dash x2 x2 dash. ठीक है, so क्या होगा यहाँ पे हमारे पास? yes, ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू x1 dash x2 dash, right? This is x1 dash x2, this is x2 dash x1, sorry, x1 x2 dash, and this is x1 x2. So बताओ हमारे पास क्या यहाँ पे कौन कौन से शेड करेंगे? x1 x2 को छोड़ के सारे शेड करेंगे. so this and this. Fine.
यस सर। ओके फाइन। सो इसको मिनिमल करने का तरीका क्या होता है ना, यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। जैसे यहाँ पे तो ऑलरेडी ये मिनिमल फॉर्म थी, बट मिनिमल करने का तरीका क्या होता है, जितने भी शेडेड पोर्शंस है ना उनको या तो 2 के पेयर में या 4 के पेयर में या 8 के पेयर में हम कलेक्ट करते हैं। सो जैसे ये एक कलेक्ट कर लिया, ये एक ये कलेक्ट कर लेंगे। सो ये जो है x1 डैश के करस्पॉन्डिंग है। सो यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि दोनों ही आ रहे हैं। सो यहाँ पे x1 डैश प्लस x2 डैश हो जाएगा ये। So this is how we minimize it, डायग्राम को यूज करके। अभी हम सीखेंगे, पहले रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं, फिर हम उसको भी मिनिमाइज करना भी सीखेंगे। ठीक है। सो कार्नोफ डायग्राम फॉर P। फाइन। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं आप। Represent the polynomial p equal to, कोई मैं लेता हूँ कोई कॉम्प्लिकेटेड सा, 3 वेरिएबल्स का ले लेते हैं। दिस वन। ठीक है। सो p equal to x1 plus x2 x1 plus x3 x1 x3 using Karnoff diagram and simplify the polynomial. So let us simplify this also. वैसे अभी मैं पूरे स्टेप्स लिखवा दूंगा सिंप्लीफाई करने के, बट यहाँ पे देख लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई करना है। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ इट्स फंक्शन टेबल, राइट, क्योंकि हमें फर्स्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन dn फॉर्म। सो फंक्शन टेबल फॉर p equal to x1 plus x2 x1 plus x3 plus x1 x2 x3 is this. So कितने 3 वेरिएबल्स का है, so there will be 8 blocks, right? There will be 8 blocks. एक 2 3 4 5 6 7 and we need one more, 8. Fine. So this is our b1 b2, this is our pb bar, oh sorry, b1 b2 b3 लेना है। b1 b2 b3 and this is pb bar of b1 b2 b3। ठीक है। so 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। यस, अब बताओ वैल्यूज बताओ जल्दी जल्दी, क्या क्या वैल्यूज आएंगी। सो ये पहले देख लो कहाँ पे 1 हो रहा है, x1 x2 x3। ये तब ये 1 जहाँ पे होगा जहाँ पे तीनों 1 होंगे, राइट। यस, दिस इज 1 ओनली व्हेन ऑल द 3 आर 1। सो यहाँ पे तो अगर ये 1 हो गया तो पूरा 1 हो जाएगा क्योंकि प्लस है यहाँ पे। सो ये तो 1 वैल्यू आएगी, राइट। दिस इज 1। अब अब इसका रोल खत्म हो गया। सो लेट अस चेक फॉर दिस। सो हमें देखना है ये दोनों 1 कब होंगे। सो ये दोनों 1 कब होंगे। सो x1 अगर 1 है तो दोनों में x1 है, राइट। इसमें भी x1 है, इसमें भी x1 है। सो अगर x1 1 हो गया तो ये 1 हो जाएगा। सो x1 1 वाले कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, राइट। अब x2 और x3 दोनों 1 होने चाहिए तभी 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि अगर x1 0 है सब में तो ये 0 हो जाएगा अगर x2 या x3 में से कोई 0 हो। सो x1 और x2 और x3 दोनों 1 किस में है, वो इसमें है।
सो बाकी सब 0 है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो ये तो हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें? अब इसका कार्नोफ डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। लेट अस जस्ट ड्रॉ इट। सो हमें क्या, ठीक है। तो एक तो पार्टीशन ये हो गया। सो दिस इज योर B1 B2, ठीक है। सबसे पहले ये कर लो, इसको पार्टीशन करके। ये तुम्हारा हो गया x1, ये हो गया x1 डैश, ठीक है। सो ये x1 का कॉलम हो गया, x1 डैश का कॉलम हो गया। अब क्या करना है? अब एक बीच में पार्टीशन देना है तुम्हें। सो बीच में पार्टीशन दे दिया। दिस इज योर, दिस वन इज योर, एक हो गया ये x2, ये x2 डैश। अब क्या करना है? अब एक पार्टीशन, अब इधर दो पार्टीशंस देने हैं, एक x4 x4 डैश के, एक फिर दोबारा x4 x4 डैश का, ठीक है, क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंग, एक x2 के कोरस्पॉन्डिंग, x2 डैश के कोरस्पॉन्डिंग। सो बेसिकली ये करना है, ठीक है। सो इसमें क्या कर सकते हो? या तो देखो इस तरह से लिख सकते हो, फिर तुम्हें एक लाइन और खींचनी पड़ेगी कि x4 x4 डैश, फिर दोबारा x4 x4 डैश, ठीक है। सो लेकिन फिर यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव दिस, कि ये कॉमन कर दो, ठीक है। सो इस तरह से कर लो, इसको x4 कर दो, ये दोनों को रिप्रेजेंट करता हुआ, ये x4 डैश, ये x4 डैश, ठीक है। यस, सॉरी सॉरी सॉरी। So x3 so this is your x3, this is x3 dash, this is x3 dash। अब ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, दिस इज x1 डैश, x2 डैश, x3। तो चलो रिप्रेजेंट करते हैं सारे। सो जीरो कौन से हैं? बस वो देखने हैं हमें, वो कौन कौन से ब्लॉक्स छोड़ने हैं। एक तो तीनों कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तीनों कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? x1 डैश, सो दिस, ये वाला, ये तीनों कॉम्प्लीमेंट है, राइट। इसमें x1 डैश भी है, x2 डैश भी है, x3 डैश भी है। सो ये वाला हम कलर नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा जीरो कौन सा है? x1 x2 डैश और x3। सो x1 x2 डैश x3 ये वाला है, सो ये भी कलर नहीं करेंगे। और तीसरा कौन सा है? x1 डैश, x2 x3 डैश। सो x1 डैश, x2 x3 डैश इज दिस वन, सो ये कलर नहीं करेंगे, राइट। सो ये तीन ना करके बस बाकी सारे हम शेड कर देंगे। So this is the Karnaugh diagram representing P, ठीक है। So Karnaugh diagram representing P। अब क्या करना होता है ना, मिनिमाइज करना है हमें। मिनिमाइज करना है तो हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने हैं हमें। और ग्रुप्स किस तरह के बनने चाहिए? 2K 4K या 8K, ठीक है, जो शेडेड पोर्शंस में से है। कंटिन्यूअस होना चाहिए पूरा, एक कंटिन्यूअस ग्रुप। तो एक तो ग्रुप हमारा ये बन रहा है, ठीक है। एक कौन सा ग्रुप बन रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो सकते हैं? देखो एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें ये पांचों को चार में, एक उसमें तो कर नहीं सकते। हमें 2 का ग्रुप बना सकते हैं, 8 का ग्रुप बना सकते हैं, 4 का ग्रुप, इस तरह के ग्रुप्स हैं। तो एक 4 का ये बना सकते हैं हम, राइट। ये 4 का एक बना सकते हैं और एक ये बना सकते हैं, दिस टू ग्रुप्स। सो देयर आर 2 ग्रुप्स, राइट। या इसको मैं अगर इस तरह से इससे कर लेते हैं, ठीक है। सो आई कैन, एक ग्रुप तो ये बना सकता हूं मैं, और एक ग्रुप ये बना सकता हूँ, राइट। सो ये क्योंकि पूरा x2 भी कवर कर रहा है, x2 डैश भी कवर कर रहा है, x3 x3 डैश, तो ये खाली x1 का कॉलम है। तो x1 इनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें x2 x2 डैश भी आ रहा है, देखो, ठीक है। सो बिकॉज वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, सो नाउ वी विल मेक ग्रुप्स ऑफ, देखो दो से कम तो ग्रुप्स नहीं बना सकते, क्योंकि एक में कंबाइन नहीं कर सकते। वी हैव टू मेक ग्रुप्स ऑफ
2, 4 and 8. So we have made a group of 4 and a group of 2. अब ये वाला कॉलम जो है 2 को रिप्रेजेंट करता है. दिस रिप्रेजेंट्स, क्योंकि x1 और x2 तो x1 पूरा कवर हो गया, सो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? एक तो x2 को और एक x3 को. सो दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स x2 x3 और दिस रो, and this column represents x1. So हमारा minimal form of P is, so from the Karnaugh diagram we can see that P is equivalent to x1 plus x2 x3. ये वाला रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x2 x3 को, राइट? एंड दिस कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग x1, x2 x2 डैश वो सब कवर हो गए, तो ये पूरे x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग x2 x3. ठीक है, तो ये मिनिमल फॉर्म हो गया अपने आप ही कार्नोव डायग्राम से. एंड यू कैन चेक यूजिंग दैट वो Quine-McCluskey algorithm also, that this will come out to be x1 plus x2 x3. ठीक है, so let us just write steps to find minimal polynomial using Karnaugh diagram. Steps to find minimum polynomial using Karnaugh diagram. ठीक है, so let us just write it step. So step 1 is, step 1, draw the Karnaugh diagram representing the polynomial. ठीक है, so पहले तो हमें Karnaugh diagram ड्रॉ करना है. Then step 2, so पहले हमें क्या करना है, हमें वो वाले आइसोलेटेड, कई बार क्या होगा कि एक अकेला ही बॉक्स होगा कहीं पे. ठीक है, समटाइम्स क्या होगा, जैसे अगर हमारे पास ये है बड़ा सा कोई, मैं कोई फिगर दिखाता हूँ. लेट मी जस्ट सी इफ देयर इज सम Karnaugh diagram in the figure which is isolated. So let me take this. Okay, एक डायग्राम ले लेते हैं जिससे हम we will just explain it. ठीक है, so suppose we have this diagram, और इसमें एक बॉक्स और कर देते हैं जो आइसोलेट कर देंगे जिसे, क्योंकि आइसोलेटेड वाले भी हमें रखने हैं. So suppose this is some polynomial represented by Karnaugh diagram, और इसमें एक मैं बॉक्स और पेंट करना चाहूँगा because I want to take the isolated one also. So suppose this is also shaded. ठीक है, ये भी जो है शेडेड है, या चलो ग्रे कलर ही ले लेते हैं to keep it. So let us just shade this. So ये ले लिया हमने. Okay, so all these are shaded boxes. So अब isolated कौन सा है? ये वाला isolated है, right? This one is isolated. So सबसे पहले हमें इस तरह के boxes को collect करना है. So we have to collect all such type of boxes. So this is our step 1. Group all the isolated shaded box. So group all the isolated shade. So हम किस में वन कर सकते हैं? 1 का बॉक्स बना सकते हैं, 2 का, 4 का, 8 का, याद रखना. ग्रुप ऑल द आइसोलेटेड शेडेड बॉक्सेस, ओके, इन द Karnaugh डायग्राम. In the K map which are not adjacent to any shaded box. ठीक है, that is a single loop. ठीक है, हमें सिंगल लूप बनाना है. ठीक है, so we will make a single loop. हम इस तरह से इसको कलेक्ट कर सकते हैं.
ठीक है, वी कैन मेक अ सिंगल लूप ऑफ दिस. एक हमने ये ले लिया. ठीक है, सो वी हैव सेलेक्टेड दिस वन. अब लेट अस टेक द नेक्स्ट स्टेप. Step 2. So step 3. So group any pair which is shaded and is adjacent to only one shaded box. ठीक है, जैसे दैट इज डबल लूप्स ढूंढने हमें. डबल लूप. सो यहाँ पे कौन कौन से डबल लूप्स हैं हमारे पास? एक डबल लूप ये वाला आ जाएगा, क्योंकि ये इससे बड़ा और कोई ले नहीं सकते. 2 से बड़ा यहाँ पे कोई नहीं ले सकते. और यहाँ पे भी एक ये आ जाएगा हमारे पास. सो दीज आर द 2 पॉसिबल लूप्स, राइट? यस. सो दीज आर द ओनली 2 पॉसिबल लूप्स. एक तो ये आ गया एंड दीज 2. ठीक है, सो दिस इज अवर स्टेप 2. ये हमें इकट्ठा करना है. ठीक है, फाइन. यस. Yes, sir. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 4. ग्रुप एनी ऑक्टेट. ठीक है, ऑक्टेट मीन्स 8 शेडेड बॉक्स टुगेदर. ठीक है, या तो स्क्वायर होगा या 8 वैसे होगा. ऐसे नहीं कि ये ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल या वो बनना चाहिए हमारे पास. ठीक है, स्क्वायर बनना चाहिए. ठीक है, 8 का रेक्टेंगल या 8 का स्क्वायर तभी कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, 8 का तो रेक्टेंगल ही बनेगा क्योंकि 4 4. फाइन. सो रेक्टेंगल होगा ये. सो हम रेक्टेंगल या स्क्वायर ही बना सकते हैं. ठीक है, एल शेप में कुछ नहीं दे सकते. और हम लेंगे 1 का, 2 का, 8 का, 4 का, इस तरह से 1 2 8 4 टुगेदर. सो दिस. और क्या लेना होगा हमें? और इसमें क्या है कि ओवरलैप भी हो सकते हैं. ओवरलैप इज पॉसिबल. 8 वाले में ओवरलैप इज पॉसिबल. मैं दिखाऊंगा कहाँ पे ओवरलैप हो सकता है. ठीक है, ओवरलैप इज अलाउड. ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा ओवरलैप पॉसिबल है, क्योंकि कई जगह हो सकता है. ओवरलैप इज अलाउड. स्टेप 5. ये रफली स्टेप्स हैं क्योंकि ये हमें मतलब माइंड में ही रखने हैं अपने. एंड सो नेक्स्ट इज ग्रुप एनी 4 shaded box together that contains one or more shaded box which are not yet grouped, that have not been already grouped. ठीक है, सो अब इसमें देखो, इसमें ऑक्टेट तो है नहीं हमारे पास. वी हैव नो 8 ऑक्टेट तो है नहीं, बट यहाँ पे हमारे पास 4 का है. और इस केस में तो ये तो अलग ही है, लेकिन कई बार ओवरलैप भी हो सकता है. ठीक है, सो समटाइम्स ओवरलैप हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट एक बॉक्स जो है वो किसी के साथ ग्रुप्ड नहीं है, वो किसी के साथ शेयर्ड नहीं है, तभी लेना है हमें. ठीक है, 4 का लेना है, लेकिन इट शुड बी दैट वो किसी के साथ ग्रुप्ड नहीं है. ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास. सो दिस इज अवर स्टेप 4. ठीक है, स्टेप 5. और फिर स्टेप 6 है. देयर इज स्टेप 6. एंड व्हाट इज दैट? ग्रुप एनी पेयर्स necessary to include any shaded box that had not been grouped. Group any pairs of shaded box to include
shaded box that have not been grouped yet. ठीक है, सो अब वो पेयर्स वाले ढूंढने हैं. Making sure to use the minimum number of groups. ठीक है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स रखने हैं कि ऐसा नहीं है कि दो दो के बहुत सारे बना दिए और पता वो मिनिमम. सो वी हैव टू मेक keep in mind that we have to make minimum number. So and last step क्या होगा? Step 7, write the sum of products of all the terms generated. Sum of products of all the terms generated. So for example, अगर यही वाला डायग्राम ले, हमारे पास यहाँ पे यही पॉसिबल था. So इसका मिन डायग्राम क्या हो जाएगा? इसका वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट. यस, बताओ. इससे P क्या आएगा? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग P. सो हमारे पास यहाँ पे 4 ग्रुप्स हैं. सो 4 प्लस आएंगे. सो P इज इक्विवेलेंट टू क्या आएगा? एक ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरा बॉक्स. ये पूरा बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो B4 डैश तो दोनों आ रहे हैं, ठीक है, और B3 डैश भी दोनों आ रहे हैं. सो ये जो ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है ये B1 B2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या X1 X2 लिख सकते हो. ठीक है, और ये वाला ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला स्क्वायर. सो नंबर दे देते हैं. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 and this is 4. so 4 groups are there. 4 groups. ठीक है, ग्रुप 1 जो है this represents X1 X2. ग्रुप 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो क्या आएगा यहाँ पे. B4 यूज हो रहा है और B1 डैश यूज हो रहा है और साथ में B2 डैश भी यूज हो रहा है क्योंकि दोनों नहीं यूज हो रहे ना. सो ग्रुप 2 इज B1 डैश, B2 डैश, B4, या सॉरी X1 X2 लिख रहे हैं तो X1 X2 या B1 B2 ही कर दो अभी. ठीक है, सिंपल रहेगा, बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे. B1 B2, दिस इज B1 डैश, B2 डैश एंड B4. ठीक है, तीनों यूज हो रहे हैं ना. ग्रुप 3 का बताओ जल्दी. यस, what should be the minimal term corresponding to group 3? जल्दी बताओ. B2 dash, B1 dash, B2 dash and B3 dash. यस, क्योंकि B1 डैश आ रहा है, B2 डैश आ रहा है पूरा और B3 डैश आ रहा है. B4 दोनों यूज हो रहे हैं. सो B1 डैश, B2 डैश एंड B3 डैश. ग्रुप 4 ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? क्या क्या आ रहे हैं इसमें? B1, B2 dash, B3 dash, B4 dash. B4 डैश. ठीक है, सो एक चीज ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास अब ये था, अगर दिस इज, सो यहाँ पे 2 वेरिएबल गायब हो जाएंगे क्योंकि 4, ये 4 का बॉक्स बन रहा है ना, तो 2 वेरिएबल गायब हो गए. ये 2 का बॉक्स बन रहा है तो यहाँ पे एक वेरिएबल गायब होगा. ठीक है, तो और ये अकेला है सो यहाँ पे एक भी वेरिएबल गायब नहीं होगा क्योंकि चारों से ही आएगा. सो अवर P is equivalent to B1 B2 plus B1 dash B2 dash B4 plus B1 dash B2 dash B3 dash plus B1 B2 dash B3 dash B4 dash, and these are all called these are all prime implicants. ठीक है, ये prime implicants है हमारे. So all the
polynomials representing the groups formed are called prime implicants. Note all the polynomials representing the groups formed are called prime implicants. ठीक है, is it fine? So this is all about Karnaugh diagram. इसकी प्रैक्टिस कर लेना और क्वेश्चंस की. So these are the main steps. कई बार तुम्हें 2-3 ऑप्शंस मिलेंगे चूज करने के लिए कि कौन सा, उसमें देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स किस में फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स, ये याद रखना. हमें मिनिमाइज क्या करना है, 2 चीज मिनिमाइज करनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमाइज होने चाहिए एंड देन सेकंड थिंग नंबर ऑफ लिटरल्स मिनिमाइज होने चाहिए. ठीक है, सो इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, I want to do one more question so that it will become more clear. So find the simple functions for the following. So एक ही दे रहा हूँ यहाँ पे, एक तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. ठीक है, so this is your this and this is your Karnaugh diagram. So let us so solution. So क्या ग्रुप्स बनाए हम, पहले तो हमें अब वो वाले बनाने हैं. सो 1 2 वाले जो अलग से हो, जो किसी एक ही से एडजेसेंट हो, वो ये वाला ही है, राइट? इसको और हम किसी के साथ नहीं दे सकते. यस, सो ये हमें लेना ही पड़ेगा, राइट? यस, और एक ये 4 वाला लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसको और किसी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते. फिर अपने पास एक यही बचता है 4 वाला. सो दिस 3 आर देयर. सो पी क्या हो जाएगा अपना, जल्दी से बता दो. पी विल बी इक्विवेलेंट टू, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप 1, बताओ. B2 B4 dash. B2 B4 डैश, राइट? क्योंकि B1 डैश और B1 दोनों आ रहे हैं और B3 डैश वो भी पूरा आ रहा है. सो B2 B4 डैश प्लस नेक्स्ट ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 वाला ब्लॉक, B1 dash B3. B1 डैश B3, क्योंकि B2 B2 डैश दोनों आ रहे हैं, B4 B4 डैश दोनों आ रहे हैं. सो वो हट जाएंगे, बस यही बचेगा. एंड दिस ब्लॉक B1 dash B2 dash B4. B1 डैश, क्योंकि इसमें B1 डैश आ रहा है, फिर देन B2 डैश आ रहा है और B4 डैश आ रहा है, क्योंकि B3 B3 डैश दोनों आ रहे हैं. सो B2 डैश एंड B4. सो दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, सो इस तरह से अगर कार्नोव डायग्राम है तो वी कैन इजीली, सो हमें ये क्वाइन मैकलेस की मेथड से ज्यादा इजी है कार्नोव डायग्राम. ठीक है, सो अगर कोई भी कार्नोव डायग्राम दिया हुआ है, सो वी कैन इजीली फॉर्म वो सिंप्लीफाई इट. ठीक है, सो इसके क्वेश्चंस और कर लेना प्रैक्टिस. देयर आर 2-3 मोर क्वेश्चंस, जैसे मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ, ये इनको कर लेना. आई एम नॉट गोइंग टू डू देम, जस्ट डू दिस क्वेश्चन. यूज अ कार्नोव डायग्राम टू सिंप्लीफाई दिस. सो पहले इसको डीएन फॉर्म से तुम्हें डीएन फॉर्म निकालना होगा, देन यू विल रिप्रेजेंट इन कार्नोव डायग्राम, और फिर उसमें मिनिमल ब्लॉक्स ढूंढने होंगे. तो समटाइम्स ये ब्लॉक्स यहाँ पे भी सिंपली हमें मिल गया, लेकिन कई बार तुम्हें चॉइसेस बनाने पड़ेंगे, वहां पे देखना पड़ेगा. ठीक है, तो वो थोड़ा देख लेना. अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगे जिसमें तुमसे चॉइसेस नहीं बन रहे हैं तो कम टू मी, देन वी कैन सॉल्व इट अगेन. ठीक है, सो दिस इज एनफ फॉर टुडे. ओके, so bye everyone, have a good day. Bye everyone. Thank you, sir. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel, Online Learning, to stay updated and share with your friends. Happy learning through online learning. To watch more, click on any of these cards. Thank you once again.